part, that is design intent, part orientation. Okay, तो डिजाइन इंटेंट पार्ट ओरिएंटेशन जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है और इससे होता क्या है। लास्ट तक तो हम लोग 2D बनाना सीख गए, 3D बनाना सीख गए, उसका सारा छोटे छोटे रिलेशन सीख गया है, कैसे क्या स्केच का रिलेशन होता है। एंड देन आफ्टर हम लोग काफ़ी कुछ सीखे, थोड़ा बहुत फिलेट शैम्फर, अलग अलग तरीका से उस पर कोई भी चेंजेस लाना, कैसे अलग अलग कंटूर का यूज़ करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग सीखेंगे डिजाइन इंटेंट पार्ट ओरिएंटेशन। SolidWorks generates 3 orthogonal planes when a new part file is created. The right plane, the front plane, and the top plane. Each of these planes are oriented in this manner when in the isometric view. The first sketch profile of a part is typically drawn on one of these planes, which will determine the part orientation as it's built. In a drawing with a standard 3 view, the first view that is placed in the lower left corner is the front view. The top view is placed above it, and the right view is placed to the right of it. In this lesson, I'll create this part that has 5 features. This part can be oriented in a number of ways, such as placing the bottom base flange on the top plane, on the front plane, or on the right plane. However, I'll identify ये काम किस में देता है डिजाइन इंटेंट पार्ट ओरिएंटेशन में। जैसे कि आप लोग अगर डिजाइन की क्लास किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 2 तरह का व्यू में हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक फर्स्ट एंगल व्यू और एक थर्ड एंगल व्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये जैसे ये बेस को टॉप प्लेन से फ्रंट प्लेन रख रहा है या फिर फ्रंट प्लेन से राइट प्लेन में रख रहा है, तो इसका व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब फर्स्ट एंगल व्यू में जो प्रोजेक्शन रहेगा, थर्ड एंगल व्यू में जो प्रोजेक्शन रहेगा, उस पर चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, which planes to draw the sketch profiles on in order to create the part with the same orientation. I want to create a part that has 2 flanges joined by a fillet with a rib feature on the side. In order to start creating this part, I must gain an understanding of which feature to create first, and then decide which plane to sketch the profile on. If I take a look at the drawing for this part, the front view shows the rib profile as well as the part having an L-shaped profile. The top view shows the profile of the base flange and the circular cutout. And the right view shows the profile for the vertical flange. Each of these profiles should be drawn in their respective planes. This means that the rib profile should be drawn on a plane parallel to the front view. The base flange and cutout profiles should be sketched on the top plane, and the vertical flange profile should be drawn on a plane parallel to the right view. Once the profile planes have been established, it is critical to identify which profile should be sketched first. This part can be built many ways and produce the same result, which gives a number of options as to which profile should be sketched first. However, when I take a look at the part, I can see that the majority of the features are built upon the base flange, which has its sketch profile on the top plane. This will be the first sketch profile I create. I'll switch over to the part file to begin creating the sketch. To create this profile, I will click on the top plane in the feature tree and click the sketch icon from the context toolbar. I am automatically placed into sketch mode, and the graphics area rotates and places me in a view normal to the plane. Now I can begin sketching the profile. I'll activate the line tool, begin my sketch at the origin, and draw the profile. ध्यान से यहाँ पे देखो किस तरह से वो लोग डिजाइन का मतलब I'll dimension the width of the profile to be 25 millimeters. यहाँ पे आप लोग सिर्फ ध्यान से देखो कि कैसे ये लोग डिजाइन का इनिशिएटिव लेते हैं। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ डिजाइन इंजीनियर कि डिजाइन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आपने 3D ऑब्जेक्ट देख लिया, कैसा था 3D ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हो कि इसको मैं 2D में कैसे बनाऊंगा। ओके, तो बनाने का तो बहुत तरीका है, बट कौन सा सिंपलेस्ट तरीका होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं।
ठीक है। इसको चाहे तो मैं रेक्टेंगल बना के एक्सट्रूड कट करके मैं कर सकता था, बहुत कुछ तरीका है। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा कहाँ पे फिलेट है। अच्छा, यहाँ पे 5 mm का फिलेट है, वो भी अंदर की तरफ में है, बाहर की तरफ में नहीं है, तो उस तरह से 5 mm का फिलेट देना पड़ेगा, वहां से एक निकालना पड़ेगा। तो इसको आप लोग ध्यान दो कैसे अप्रोच कर रहा है। Creating the circular cutout. I'll switch back to the part I am creating. I'll start a sketch on the top plane once again. I'll click the top plane and switch the view to Normal to. Sketch the circular profile. जो इन लोगों ने नॉर्मल व्यू किया है, वहां से राइट क्लिक करके ये नॉर्मल व्यू मैंने आप लोगों को कैसे सिखाया है, कंट्रोल 8 बटन प्रेस करके, ठीक है। आप लोग कोई भी तरीका अपना सकते हो। Up to next end condition from the sketch profile. This leaves the vertical flange to be created next. I'll switch back to the drawing, and the profile of the vertical flange is seen in the right view. I'll switch back to the part to create the profile in the right view. To begin sketching the profile, I could choose the right plane to begin my sketch on. However, the best practice for creating features is to create them based on the design intent of the part. In this case, the vertical flange should always have a face that is coplanar to the end of the base flange. So I will sketch the profile on this existing end face of the base flange. I'll draw a rectangular sketch profile. देखो, दो तरह से अप्रोच कर सकते थे ये लोग, ऊपर से भी कर सकते थे, बट अभी वो लोग साइड से कर रहे हैं। राइट प्लेन से भी कर सकते थे, बट राइट प्लेन से शायद हो सकता है थोड़ा सा गैपिंग रह जाए, इसलिए वो लोग डायरेक्टली ये जो टैब बनाया ना, इसका ही साइड फेस से स्टार्ट कर दिए हैं करना। ओके, तो मैंने कहा ना बहुत तरीका हो सकता है, और कोई भी तरीका गलत नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका सिंपल लग रहा है, क्योंकि डिजाइन तो वही बनना है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आप लोग हमेशा ड्राइंग वैसा ही बनाओगे जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस हो तो आप लोग चेंज करो तो कोई डिजाइन एरर नहीं आए। इसको दिमाग में रख के डिजाइन बनाना चाहिए। This leaves the rib and fillet left to create. These features can be created in either order. I'll choose to create the rib feature next, as fillets are typically created at the end. I'll switch back to the drawing to see which view displays the rib profile. The rib profile is shown here in the front view. I'll switch back to the part. Click to show the front plane. And I will create the sketch on the back side of the part parallel to this plane. I'll draw a line as the profile for the rib feature. Add a 45-degree dimension between the line and the base flange. And create the 2 mm rib with a thickness on the second side pointing down toward the two flanges. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, रिब फीचर मैं आप लोग को दिखा दूंगा कैसे होता है ये। And I'll hide the front plane. The last feature to create is the fillet. I'll click on the fillet tool in the command manager and add a 5 mm fillet to the edge where the two flanges join. Now all of the features have been created, and I'll turn on the 3 sketch planes to check that my part orientation matches the drawing views. Finally, I'll create a drawing from this part. I'll go to the File drop-down menu and choose Make Drawing from Part. Choose a landscape as the sheet format. Drag in the front view of the part from the view palette, and place the top view, right view, in an isometric view. These views all match the original drawing, confirming that the part was created with the proper orientation.
तो यहाँ पे आप लोग क्या देखिए कि कैसे हम लोग 2D से 3D से 2D कर सकते हैं। ओके, सो इसमें इसमें खास कुछ मतलब बहुत कुछ नहीं था, बट एक दो पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा था जो कि आप लोग को जानना चाहिए। एक तो है कि रीफ फीचर, और दूसरा है कि ओरिएंटेशन के हिसाब से उसका लेआउट बनाना, मतलब 2D में, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल सेम चीज को मैं दोहरा रहा हूँ। ओके, और अगर आपके पास कोई डिजाइन है तो आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, तो टॉप प्लेन को मैं ले रहा हूँ पहले। ओके, देन आफ्टर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, बिना कोई डायमेंशन का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली डायमेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं डायमेंशन ले रहा हूँ। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कितना सारा तरीका है मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। एक तो मेरा ये एक तरीका है। ओके, ये एक तरीका है जो आपने देखा वहां पे मतलब उस जगह में, फिर यहाँ पे हम लोग बना के इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये तरीका आप लोग ने देखा ना। और एक तरीका क्या है, चलिए मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ कि कैसे उस ड्राइंग को मैं भी कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन अपने, ठीक है। तो एक डिजाइन का बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। एक्सक्यूज मी। सो मैंने फ्रंट प्लेन लिया, देखो मैंने प्लेन चेंज कर दिया है, पहले टॉप प्लेन मैंने लिया था, अभी फ्रंट प्लेन लिया है। ओके, क्योंकि मेरा अभी डिजाइन करने का तरीका भी चेंज रहेगा। मैंने एक लाइन लिया ऐसे, ओके, और फिर लाइन लिया ऐसे, ठीक है ना। ओके, अभी एक चीज देखो, मैं इसको और इसको तो कोइंसिडेंट कर दे दूंगा। देखो मैं सारा सारा अभी फीचर का यूज करूंगा जो भी आप लोग ने इतना दिन से सीखा है। ओके, इसको 130 और इसको 60, ठीक है। अभी देखो क्या करने वाला हूँ, ऑफसेट एंटिटीज। ऑफसेट एंटिटीज में मैं 5 mm का ऑफसेट लूंगा यहाँ से, इस लाइन का। हो गया ना, हो गया। तो अब इसको क्लोज मैं कर दूंगा, नहीं तो क्लोज नहीं करने से एक्सट्रूड कैसे होगा। हो गया मेरा क्लोज। ओके, अभी इसको मैं कर देता हूँ 60 mm। देखो पहले वाला डिजाइन से लगभग सेम हो गया ना, कोई अंतर नहीं है। हाँ, यहाँ पे फिलेट था इस जगह में, चलो उसने क्या किया था, जब स्केच कर रहा था तब स्केच एंटिटी से फिलेट किया था, मैं बॉडी से फिलेट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 mm का कि 20 mm का जितना भी फिलेट है मैं यहाँ से दे दूंगा। ओके, अच्छा रीफ फीचर था ना यहाँ पे, चलो ये पॉइंट्स था। ओके, तो तरीका डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो। अच्छा, रीफ फीचर कैसा फीचर होता है, रीफ फीचर होता है उसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन बनाना पड़ता है। रीफ फीचर होता क्या है, वो एक सपोर्ट देने के लिए होता है। आप लोग देखे होंगे ना कि जहाँ भी टूटने का डर रहता है कोई भी चीज को, तो वहाँ पे एक रिप का सपोर्ट दिया जाता है, तो वो होता है रिप फीचर। तो आप लोग कहाँ से रिप मिलेगा, आप लोग टूल से रिप निकाल सकते हो, ठीक है। और एल्स अगर आप लोग को रिप नहीं मिले तो यहाँ पे कमांड मैनेजर है ना, वहाँ पे RIP करके टाइप कर देना रिप। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, आई में क्लिक करना तो आपको दिखा देगा कि कहाँ पे आता है। देखो फीचर्स में ही रिप फीचर यहाँ पे भी आता है। ओके, देखो ये पहले ना बीच से करते हैं, लेकिन बीच से करने से तो बाहर चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको वन साइड कर देंगे, यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है। कितना का रिप था, 2 mm का था, 2 mm है ना, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन किस तरफ है देख लो, डायरेक्शन ठीक है इस तरफ है, कहाँ तक जाएगा ये पूरा कवर करेगा, ठीक है। हो गया रिप फीचर। यहाँ पे फिलेट था, फिलेट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिलेट हो गया 10 mm का। और क्या था, यहाँ पे होल था ना, Ctrl 8 मारो, खींच लो
और इसमें एक होल कर दो, डायमेंशन दे दो होल का, फीचर एक्सट्रूड कर। तो आपने देखा उसने एक तरीका से किया, मैंने एक तरीका से किया, डिजाइन एक ही है। ओके, डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, यही डिजाइन था ना। अभी आप देखो यहाँ पे फ्रंट प्लेन है, देखो टॉप प्लेन कहाँ पे है, देखो टॉप प्लेन भी अपनी जगह में है, सही जगह में है, ठीक है। और एक राइट प्लेन कहाँ, यहाँ पे है। तो पूरा पूरा हम लोग का सही था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था इसमें, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2D में करेंगे। 2D में करने के लिए आप लोग ऊपर में देखो एक छोटा सा बटन है न्यू बोल के, न्यू में क्लिक करना। न्यू फर्क मत क्लिक कर देना, न्यू के साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करना। यहाँ पे आएगा मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली। तो अगर आप इसमें क्लिक करोगे ना तो बोलेगा पहले फाइल को सेव कर लो। तो पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S टिप कर, या फिर यहाँ पे फाइल का सेव ऑप्शन रहता है, डेस्कटॉप में सेव करते हैं। ओके, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे सेव किया हमने। अभी इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर में देखो न्यू का एरो में क्लिक किया और मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली, ठीक है। तो ड्राइंग अब बनाऊंगा इसका। तो इसके लिए आप यहाँ पे ना ये जो फॉर्मेट है इसको खुद से भी डिजाइन करके उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने कंपनी का या फिर मैं किसी किसी भी नाम से मैं इसको बना सकता हूँ। तो देखिएगा उसमें अभी मेरा नाम रहेगा क्योंकि मैं पहले से नाम दे के रखा हूँ, देखो यहाँ पे है ना। तो मतलब आप फिर जाके इसको एडिट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके एडिट शीट फॉर्मेट करना, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो राइट क्लिक करके एडिट शीट फॉर्मेट। उनको इसको चेंज करना है, मैं चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये सब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा ये पार्ट खत्म हो गया, शीट को मैं सेव कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड में, देखो ये वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे अपना ये जो है व्यू पैलेट को ओपन करना। ओके, क्या हुआ, हाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू पैलेट को ओपन करना। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आया टॉप फ्रंट। तो अगर मैं टॉप को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो फ्रंट ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा उल्टा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो दूसरा है, उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दूसरा था, ठीक है। अभी अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपना चेंज कर लूँ, प्रॉपर्टीज में जाकर फर्स्ट एंगल अगर मैं कर लेता हूँ, तो मेरा भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो चेंज हो गया। देखो चेंज हो गया ना, अभी पहले ये डाउन साइड था, अभी इस साइड हो गया। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कर रहे हो। मैंने क्या दिखाया, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी पर जाओगे और यहाँ पे फर्स्ट एंगल या फिर थर्ड एंगल, दोनों में से कोई एक ही होता है ना, बस उस पर क्लिक कर दो, हो जाएगा, ठीक है। मैंने थर्ड एंगल था, अभी मैं इसको फर्स्ट एंगल कर दिया। अभी इस पे एक आइसोमेट्रिक व्यू भी लेना है, तो आइसोमेट्रिक व्यू लिया, यहाँ पर लगा दिया। ओके, अब क्या, मॉडल आइटम में क्लिक करना। ओके, अच्छा इसको इसको देखो शेडेड करना है तो इसको क्लिक करना, नीचे में जाना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे ये सब ऑप्शन है, इसको शेड कर दो, ठीक है, सिर्फ वही शेड रहेगा। और देन आफ्टर आप मॉडल आइटम में क्लिक करना और यहाँ पे करना इंपोर्ट आइटम इनटू मॉडल, और यहाँ पे क्लिक करना सारे चीज जो भी मार्क्ड है वो सारे चीज इसमें इंपोर्ट हो जाएंगे, जितने भी डायमेंशन है। ओके कर देना। इसे पूछ रहा है कि एंटायर मॉडल, तो मैंने कहा यस। तो देखो सारा सारा आ गया ना, जितना भी आप लोग के सामने मैंने दिया था डायमेंशन सब आ गया, कुछ भी नहीं छूटा है। तो ये डिपेंड करता है आप किस हिसाब से इसको मतलब दिखाना चाहते हो, ठीक है ना। रेडियस 30 था ये वाला, तो आपको लगभग सारा ही आ गया। इनकेस अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं आया तो आप लोग स्मार्ट डायमेंशन से मार्क कर देना, ठीक है, ऐसे करके स्मार्ट डायमेंशन से मार्क कर देना, है ना। ओके फाइन,
चलिए ये आपको हो गया डिजाइन इंटेंट, आप लोग समझ गए, आप लोग 2D क्रिएट करना समझ गए, 3D क्रिएट करना समझ गए, 3D से कैसे 2D करोगे ये समझ गए हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। The three default plane created in a new part file cannot be changed or reoriented. False। हम लोग प्लेन को extremely sorry, मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ। The three default plane created in a new part file, top, front and right cannot be changed or reoriented। एक बार आप लोग जो प्लेन को लेके आप डिजाइन कर लेते हो उसको आप रीओरिएंटेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। रीओरिएंटेशन आप लोग को लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फाइन। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन इंडेंट एंड कंडीशन। ओके इसमें भी कुछ 2D लेकर ही बात किया जाएगा, कैसे 3D को 2D में करके कुछ अच्छा व्यू आप लोग को सिखाया जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखना, किसी का डाउट है नहीं है? ओके फाइन। In order to create extruded boss or cut features in SolidWorks, the end condition for the feature must be specified. End conditions can either be specified by extruding the sketch profile by a specified distance or by utilizing existing 3D geometry. ये जो हमने blind, through all ये सब कर रहा था ना, इसको ही end condition बोलते हैं। Sketch plane, the blind end condition, the through all end condition, and the mid-plane end condition. The blind and mid-plane end conditions are set by specifying a finite distance away from the sketch plane, while the through all option continues through all existing material in a single direction. There are 5 types of end conditions that are defined by existing 3D geometry: the up to next end condition, the up to vertex end condition, the up to surface end condition, the offset from surface end condition, and the up to body end condition. The offset from surface end condition also requires a distance to specify how far the extrusion stops before the selected surface. Using a combination of these different end conditions, I will walk through how to create this custom block and determine which end conditions are best according to the design intent of the part. Here I have a sketch that will create the custom shaped block using a combination of extruded boss base and extruded cut features. This first feature will be a boss extrude that uses the mid-plane end condition, which is an end condition that does not use pre-existing 3D geometry. To create this first feature, I'll select the sketch from the feature tree, click on Extruded Boss Base from the Command Manager, and in the Direction 1 box, the default end condition is set to blind. The blind end condition extrudes the profile by a certain set distance, and it does not take other 3D geometry shape to have material going in sides of the sketch profile. However, the amounts can vary independently. You can see this when I drag the arrow. ये चीज आप लोगों को पहले ही दिखा मैं चुका हूँ कि इधर आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से एरो पकड़ के ड्रैग कर सकते हो। और ये भी मैंने बताया था कि जहाँ पे डबल एरो है वो डायरेक्शन 2 है, जहाँ पे सिंगल एरो है डायरेक्शन 1 है। अगर आपको एक डायरेक्शन में करना है, ये मैं कट में आप लोग को दिखा रहा था कल कि अगर एक डायरेक्शन में आपको अगर एक्सट्रूड करना है तो आप यहीं से करो, ब्लाइंड करके या फिर थ्रू वॉल करके या फिर मिड प्लेन करके। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग डायरेक्शन देना है तो डायरेक्शन 2 को ऑन करो लेफ्ट साइड में, और डबल डायरेक्शन वाला डबल एरो वाला जगह को आप लोग डायरेक्शन पुट करो, ठीक है। Distance using the blind end condition. To begin, I'll show sketch 2, then select it to create the cut. I'll enable the extruded cut command, and the blind end, this is the end condition I want to use. But how do I create a cut on this side of the block?
यही सेम चीज मैं कल आप लोगों को करके दिखा रहा था अलग से प्रोफाइल में, कि मैंने एक प्रोफाइल मैंने स्केच क्रिएट किया और उससे मैं दो तरफ में कट कर रहा था। ठीक है, बीच में स्केच था, मैंने दो तरफ में कट किया, एक तरफ पूरा थ्रू ऑल कर दिया यानी कि एंड कंडीशन थ्रू ऑल दे दिया था, और दूसरी तरफ में एक लिमिटेड डायमेंशन दिया था कि 20 mm तक ही डेप्थ कटेगा। याद होगा आप लोग को अगर कल का मतलब आप लोग सेशन किए थे। तो ये वही चीज बताया गया है, यही है एंड कंडीशन। ओके, ये दोनों तरफ में जो कट हुआ है यही है, एक तरफ में कुछ तक कट हुआ है, एक तरफ में तो प्रॉपर्ली पूरा कट हुआ है। तो इसको मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कल मैंने ये पार्ट को दिखा दिया था। ओके, And will maintain cutting up to this face as long as the face is present in the model. Now I will click the green check, and the cut is created up to the angled face. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो आप लोग देख रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं एक बार दोबारा I can use the up to next end condition. When I switch it, the preview updates and shows the end of the cut matching the angle of the face. This is a geometry dependent end condition and will maintain cutting up to this face as long as the face is present in the model. Now I will click the green check, and the cut is created up to the angled face. ठीक है ना। यहाँ पे क्या था कि यहाँ से वो उसने कट किया, तो ये तो एंगुलर है ना, ये तो एंगल्ड है, और वो तो सर्कल स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट अगर जाएगा तो एंगल को कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। तो यहाँ पे कट कर रहा था, हो सकता है उस तरह का कट करने में आपका क्या हो, आपका ये जगह भी कट हो जाए। तो उस पर क्या करना है, आप लोग सरफेस को चेक कर सकते हो कि ये सरफेस तक ही काटना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है। अभी ये पार्ट से नहीं होगा, ये बहुत पतला है। मैं एक नया पार्ट क्रिएट करता हूँ, ट्रायंगुलर में क्रिएट करता हूँ, फ्रंट प्लेन में क्रिएट करता हूँ। ओके, तो मैं अलग से एक पार्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस पे अब मैं स्केच एक करता हूँ, स्केच। मैं इसको कट कर देता हूँ। थ्रू ऑल, देखो यहाँ पे मैं एंड कंडीशन दे रहा हूँ, थ्रू ऑल हो गया कट। अभी एक चीज अभी ध्यान देना कि मैं यहाँ पे एक सर्कल कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं इसको एक्सट्रूड कट करता हूँ, ठीक है, अभी एंड कंडीशन का गेम देखो, जो मैं क्या बताया था, ये सीधा है तो कहीं ना कहीं कट करेगा। अगर मैं थ्रू ऑल करता हूँ तो ये सबको कट करेगा, इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ तक करता हूँ तो मुझको पता चलेगा क्या कि कितना है। देखो तो मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, मुझको पता चल रहा है कि ये अच्छे से कट किया है कि नहीं, नहीं अच्छे से कट किया। और थोड़ा बढ़ाऊंगा, देखो अभी भी अच्छे से है कि नहीं, नहीं पता। तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना, लेकिन मुझको ये सरफेस में ये पूरा कट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन एक देखो, यहाँ आता है अप टू सरफेस। अप टू सरफेस में क्लिक करना, यहाँ पे सरफेस पूछेगा कौन सा, मैं बोलूँगा यही सरफेस। देखो खुद ब खुद ये डिटेक्ट कर लिया कितना दूर तक जाना है। ओके करोगे, ये सिर्फ इस सरफेस तक ही कटा रहेगा। ठीक है ना, इस सरफेस तक ही कट है ना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कलर कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिखने में आसानी रहे। कोई भी एक कलर लेके मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है कैसे कट है।
तो यही फीचर का मतलब मैं बात कर रहा था। Has been created using a boss extrude with a mid-plane end condition. A cut extrude using a blind end condition starting from a specific face. And a circular cut extrude that goes up to the next face it comes into contact with. The next feature I'd like to add is a cut on the underside of the part, which will match the angle of this face here, but will always be a particular depth below this face. This will require me to use the offset from surface end condition. To begin, I'll show sketch 7 in the graphics area, which is located on the underside of the part. I'll select the sketch. Then enable the extruded cut command. I'll make sure the preview is cutting upward into the block, and if I switch the end condition to offset from surface, I can select any flat or curved face in the direction of the extrusion. If I go ahead and select the angled face, notice that the preview extends below the angled face. This depth is controlled in the Property Manager. If I change the depth to 0.5 inches, the cut will always remain a half an inch below the angled face. I'll click the green check, and the feature is complete. I'll hide the last sketch and show the last sketch I'll use, sketch 6. This circular profile will be used to cut all the way through the part, no matter how tall the block is. This means I can't use a blind end condition. ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो ना, ये जो वीडियो है एंड कंडीशन का, ये आप लोग ना खुद से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को डिज़ाइन क्रिएट करने में और एग्जाम में। तो इसमें अलग अलग तरीका का एंड कंडीशन है, जितना भी आपको दिखाएगा ना सब खुद से प्रैक्टिस करके देखना आप लोग से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मेरे को बताना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना। इसमें क्या है ना कि हर तरह का एंड कंडीशन से बात कर रहा है। अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा कि इससे मुझे ऑफसेट करना है, मतलब इससे इस कट को 5 इंच 0.5 इंच नीचे रखना है, तो उसको ऑफसेट भी आप लोग कर सकते हो। तो एंड कंडीशन में बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑफसेट का भी ऑप्शन आता है, उसको भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो भी ऑप्शन है आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे थ्रू ऑल है, देखो यहाँ पे आता है ऑप्शन ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ओके, और थ्रू ऑल बोथ करते हो तो दोनों साइड हो जाता है, ठीक है ना। Which of the end condition replaces a bidirectional blind extrusion? कौन सा एंड कंडीशन से बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों तरफ होता है। ये हम लोग का थ्रू ऑल नहीं है, इसको मैं फिर से देखता हूँ। Which of the following end condition replaces a bidirectional blind extrusion? थ्रू ऑल से तो बाईडायरेक्शनल होता है, मैं रिप्लेसेस को मिस कर दिया। थ्रू ऑल से तो बाईडायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों तरफ, ठीक है। तो रिप्लेस कौन करता है? रिप्लेस करता है आइदर अप टू नेक्स्ट होगा या फिर ऑफसेट फ्रॉम सरफेस होगा, ये दोनों में से एक होता है। चलिए आके देखते हैं किससे रिप्लेस होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक अगेन होल करते हैं। ओके, स्केच कट, अभी ये मत आप लोग सोचना कि मैं सर्कल टेढ़ा बनाया हूँ, सर्कल मैंने टेढ़ा नहीं बनाया है। वो एक्चुअली क्या है कि सर्कल जो है वो सही है, ओके, बट ये एंगुलर कट है इसलिए ऐसा आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं अगर करता हूँ ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सरफेस, मैं बोला ये सरफेस से, बोला ओके। कितना ऑफसेट करना है? 5 mm या फिर 2 mm, सॉरी, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ऑफसेट, अच्छा ठीक है, ये ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस है। तो यहाँ पे ऑफसेट पूछा किससे ऑफसेट करना है, इस फेस से ऑफसेट करना है, ठीक है। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ, ठीक है,
तो क्या हो रहा है, देखो ये घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि मैं तो ऑफसेट कहा ना। अभी सबसे इंटरेस्टिंग फीचर देखो, मैं इसको बनाया हूँ सीधा, बट ये सर्कल कट हो रहा है टेढ़ा। क्यों? क्योंकि मैं ये सरफेस से ऑफसेट ले रहा हूँ। अगर मैं कोई और सरफेस से ऑफसेट लेता तो उसकी तरह ये कट होता। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर मैं बोला कि नहीं, हमको इस सरफेस से सिर्फ 5 mm ही पीछे रहना है, तो मैं 5 अगर प्रेस करता हूँ तो ये देखो 5 mm पीछे है। 5 mm, ये डिस्टेंस 5 mm है। ठीक है ना, ये एक हुआ। दूसरा दूसरा जो है, तो इसमें क्या है, इसमें बाई डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन है। अब इसमें और एक मैं ऑप्शन लेता हूँ, और एक ऑप्शन लेता हूँ अप टू नेक्स्ट। अगर मैं अप टू नेक्स्ट करता हूँ, अप टू नेक्स्ट, तो अप टू नेक्स्ट में भी बाई डायरेक्शन है। अप टू नेक्स्ट मतलब दूसरे तरफ तक। ठीक है, यहाँ तक ले लिया ये अप टू नेक्स्ट। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो अप टू नेक्स्ट यहाँ तक आ गया, और ये खुद टिल्ट हो गया, है ना। तो ये सब आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, करके देखना है। ठीक है, जितना ट्राई करोगे उतना देखोगे। मिड प्लेन, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस हो गया मिड प्लेन। मिड प्लेन मतलब बीच से, ठीक है, बीच से ये इतना और एक ये इतना, दोनों इक्वली जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन 2 आया है, नहीं आया है ना, तो ये करेक्ट है। देखा आपने कैसे हम लोग समझे। यहाँ पे देखो डायरेक्शन 2 नहीं आया। अगर मैं अप टू सरफेस लेता था तो डायरेक्शन 1 था, यहाँ पे देखो डायरेक्शन 2 आ रहा है। तो डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 दोनों को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन मिड प्लेन का मतलब क्या है ना, मिड प्लेन का मतलब सिमेट्रिक होता है। आप अगर लेफ्ट साइड में 10 दोगे तो राइट साइड में 20 भागेगा ही भागेगा। ठीक है, समझ में आया? अप टू नेक्स्ट, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में। तो होल विजार्ड, हाँ, होल विजार्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज का जो भी टॉपिक होगा ना काफी इंटरेस्टिंग है। अभी आपको मान लो, मैं आपको बताता हूँ, आपको मान लो कोई प्रॉपरली मतलब एक आप चीज बना रहे हो, वहां पे कोई स्टैंडर्ड का स्क्रू नट ये सब यूज कर रहे हो, तो उसका स्टैंडर्ड का स्क्रू नट यूज करोगे तो उसका थ्रेड ये सब कहाँ से आप पाओगे डायमेंशन, और अगर मतलब मिल भी जाता है तो भी आप लोग को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। होल विजार्ड की मदद से ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, The Hole Wizard is a fast and easy-to-use tool that lets you add many different types of holes to your models. It can create simple, tapered, counterbored, countersunk, and tapped holes for both standard and customized sizes. One of the most intuitive aspects of the Hole Wizard is that you specify the size of the hole by the fastener that goes into it. In this example, the Hole Wizard will be used to create a couple different types of holes, and I'll demonstrate how to position them on a model. Here I have a model that I'd like to add a counterbored hole to. One of the nicest aspects of the Hole Wizard is that it automatically takes care of a majority of the sketching for you. All you need to do is add sketch points to locate the holes on the model, and the Hole Wizard will take care of the rest. I'll show you what I mean in just a moment. To begin, I'll launch the Hole Wizard from the Features toolbar of the Command Manager. When I do, the Hole Wizard Property Manager appears. There are two tabs here, one for the type and one for the positions. I'll begin by first defining the shape of the hole on the Type tab, and then selecting where the hole or holes are to be placed on the model using the Positions tab. Under the Hole Type section, I can select from several different types of holes, such as counterbore, countersink, hole, straight tap, tapered tap, legacy holes, counterbore slot, countersink slot. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी आप लोग होल विजार्ड कुछ भी सिलेक्ट करते हो ना, तो इसका मतलब आपको वो लोग होल खुद बना के देगा, मतलब सॉफ्टवेयर खुद ही होल बना के देगा।
तो वो होल जो बनता है वो कैसे बनता है, वो होल जो बनता है कैसे बनता है, तो सबसे पहले होल विजार्ड को सिलेक्ट करना है, जिस फेस में आप होल बनाओगे उसको सिलेक्ट करना है, फिर होल विजार्ड को सिलेक्ट करना है, और फिर जाके उसके बाद जो है टाइप सिलेक्ट करना है, किस तरह का आप लोग को होल विजार्ड करना है। सारा चीज सिलेक्ट करने के बाद तब जाके आपका आएगा पोजीशन, क्या पोजीशन देना है, ठीक है। तो आप लोग को उसको इस हिसाब से ही करना है। Defaults and click on the Positions tab to go about locating the hole. First, I'm asked to select a face where I want to place the hole. If I'd like to place holes on several different faces in this same feature, I could click the 3D Sketch button to do so. But just so you know, you can also place holes on planes and non-planar faces. For example, you can also create a hole on a cylindrical face. For this example, I just need a single hole on this top face, so I'll click on it in the graphics area to select it. Now all that's left is to add sketch points to locate the hole. Each sketch point you add represents the center point of an instance of the hole, and you can add as many as you need in the same Hole Wizard feature. You can click anywhere on the face to create the sketch point, and then use dimensions and geometric relations to fully define the position of the hole like you would in any other sketch. But I'll save some time by taking advantage of the automatic relations that can be added in SolidWorks. I'll wake up the center point of this upper arc by hovering my cursor over the outer edge, and then I'll click the center point to locate the hole there. And since I only want one hole on this face, I'll press Escape on the keyboard to exit the Sketch Point tool. Notice in the status bar that the sketch is fully defined due to the automatic relation that was added. When I click the green check, the Hole Wizard hole is created. If I expand the hole in the feature tree, notice that two sketches were created. A point sketch that defines the hole's position, and a second sketch that defines the shape of the hole. I don't recommend editing these sketches. Instead, if you need to make changes, edit the Hole Wizard feature and make the changes there. Let's go through one more quick example before wrapping up. This time I'll create two holes simultaneously using one feature. I'll launch the Hole Wizard feature. This will be a hole, and I'll set the standard to ANSI metric with the type set to drill size. I'll set the size to 7.0, and the end condition to through all. Next, I'll switch over to the Positions tab and select the side face to place the hole. I could place the holes anywhere on the face and then use dimensions and relations to fully define their positions. But since I'd like these holes to be positioned concentric with the circular edges, I'll save time by taking advantage of the automatic relations again, like I did with the counterbore hole. I'll hover my cursor over the edge to wake up the center point, and then click it to place the hole. And the through all end condition creates a hole going through both vertical tabs. When I click the green check, the holes are created. Okay, so let try here. हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या था, ये थोड़ा पतला है, इसमें अगर करेंगे तो अच्छा इसमें कर सकते हैं, ये इस भी ठीक है। तो होल विजार्ड सबसे पहले तो यहाँ पे देखो फीचर मैनेजर में होल विजार्ड आता है। यहाँ पे आप लोगों को होल विजार्ड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत तरह का होल विजार्ड मिलेगा, बट हम लोग डायरेक्टली होल विजार्ड में ही क्लिक करते हैं। होल विजार्ड में क्लिक करने से ना जो नीचे का ऑप्शन था वो भी ऑटोमेटिकली उस पर आ जाता है, थ्रेडेड रहना है कि नहीं थ्रेडेड रहना है। तो होल विजार्ड में क्लिक किए तो यहाँ पे देखो कितने तरह का होल मिले हैं। इसमें से मान लो मैं ये वाला होल सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है काउंटर बोर। ठीक है, काउंटर बोर मैंने सेलेक्ट किया। The current hole type has a custom size applied. What you would like to do? ओके, तो ये जनरली आप लोग का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, मेरे में कुछ ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे मैंने ISO सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे ISO का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। साइज M5 से मैंने M10 कर लिया है। ओके, नीचे में जाके फिर जाके यहाँ पे आप लोग का अलग अलग डायमेंशन है, इसको आप लोग दे सकते हो या फिर जनरली मत देना, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आ जाता है। अच्छा, ब्लाइंड कंडीशन हम लोग को सेट करना पड़ता है कि ब्लाइंड कंडीशन कहाँ है, थ्रू ऑल करना पड़ेगा। थ्रू ऑल कर देते हैं, तो थ्रू ऑल मतलब जहाँ भी होल करेंगे वो आर से यहाँ तक चल जाएगा। ओके ओके, तो टोटली दूसरी तरफ में चल जाएगा। ओके, देन आफ्टर और कुछ नहीं, ये सब आप लोग चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो
पोजीशन का ऑप्शन है। पोजीशन में जैसे क्लिक करते हो ये पूछता है कौन सा पोजीशन, हम लोग कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया, से फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया ये वाला पोजीशन, ठीक है, या फिर ये वाला पोजीशन यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करते ही ये दिखा रहा है कि एक्चुअली फेस जो है वो उल्टा हो गया है, ठीक है। just a minute, my system just hang. Just wait a minute, एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग कर गया है। सॉफ्टवेयर, हाँ ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे सेलेक्ट किया, ओके। तो एक रिलेशन देखो, एक रिलेशन आ रहा है, शायद मिड पॉइंट का रिलेशन होगा, ओके ये आया। अच्छा क्या और क्या करना है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट को अगर हटाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या पता यहाँ पे ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, ओके फाइन। इसको मैं कंट्रोल Z करके हटा देता हूँ, ओके। सो ये वाला तो एक गलती से हो गया, इसको छोड़ दो। देखो यहाँ पे किस तरह का होल क्रिएट हुआ है, ये तो हमने नहीं किया, बट ये होल विजार्ड से आपका उस तरह का होल क्रिएट हो जाता है, जिससे कि आप इजीली जो है अपना यहाँ पे कोई भी टूल्स लाके यहाँ पे सेट कर पाओ, ठीक है ना। इसमें कोई भी फिर टूल्स फिट कर पाओगे, ये भी आपको बताएगा कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये आप लोग का बहुत तरह का होल विजार्ड ये सब आता है, आप लोग को हर तरह का होल विजार्ड प्रैक्टिस करना है। इस तरह का होल विजार्ड रहेगा, ये रहेगा, टेपर्ड रहेगा, काउंटर शंक रहेगा, काउंटर बोर रहता है, ठीक है। ये सारे तरह का आप लोग को प्रैक्टिस करना है, सब आप लोग करना है एक एक करके। लीनियर पैटर्न, जब कोई चीज को आपको बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा था कीबोर्ड के बारे में, तो बार बार क्रिएट करना है तो क्या करोगे आप लोग, बार बार क्रिएट करोगे नहीं, ऑब्वियसली नहीं। एक बॉक्स बनाओगे उसको पैटर्न कर दोगे, तो ये लीनियर पैटर्न उसके ही बारे में है। As the name implies, the linear pattern tool allows you to replicate geometry in a linear fashion. It allows you to pattern geometry in a single direction, or in two different directions within a single step. These copies, referred to as instances, are all based on the original geometry, referred to as the seed, which means that if changes are made to the seed, the patterned instances will change to reflect changes as well. In this lesson, I'll use a few examples to demonstrate how the linear pattern feature works and show you some of the options, such as skipping instances and patterning the seed only when a two-direction linear pattern is used. Finally, I'll go over the instances to vary option, which provides quite a bit of flexibility when using linear patterns. The linear pattern tool creates multiple instances of the geometry you select, which can be spaced uniformly along one or two linear directions. Using this part, I'll show you how to create a linear pattern using this Boss Extrude as the seed feature. But before I get started, I want to quickly point out that this Boss Extrude was actually created. अभी ना आप लोग पूरा ये सब समझने का कोशिश करो, बिकॉज फर्दर आप लोग का कुछ पोर्शन बचा रहेगा तो वो लोग आप लोग को खुद से समझना पड़ेगा, तो आप लोग समझने का कोशिश करो, फिर उसको मैं वापस लास्ट में मैं रिपीट कर दूंगा कि कितना तरह का लीनियर पैटर्न कैसे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, ओके। तो अभी आप लोग अच्छे से ध्यान देके समझो कि क्या बोल रहा है, फिर मैं अगर बताऊंगा तो आप लोग को रिलेट कर पाओगे। Direction by selecting any entity that establishes a vector, such as a line, axis, linear dimension, or model edge. I'll select this model edge to use as the pattern direction. Before I adjust these parameters that control the spacing and number of instances, I would actually like to skip down in the property manager to select the geometry that I would like to pattern. By selecting the geometry first, it will be easier to adjust the parameters since a preview will appear in the graphics area. Here, you can see that there are two options available for what you can select to pattern. You can pattern features and faces or bodies. As you saw earlier, this cutout is made up of two features, so I'll click the Features and Faces selection window. To select the features, I can either select them in the graphics area
or I can expand the Flyout Feature Manager tree and select the features from there. When I click on a feature, you can see a preview of the pattern appear right away. I'll be sure to select both features that make up the Boss Extrude. At this point, I'll scroll to the top of the Property Manager and adjust the parameters I skipped over a moment ago. In case you ever decide to use a different direction for the pattern, you can always click the Pattern Direction box again, press the Delete key on your keyboard or right-click and press Delete, and select a new direction. In case the preview shows the instances going in the wrong direction, notice the reverse direction icon. Or you can click this arrow in the graphics area to flip it from one side to the other. The next parameters allow you to set the spacing between instances and the number of instances the pattern should include. These can be defined by the spacing and number of instances or by patterning up to a reference and spacing them evenly across that distance. I'll choose spacing and instances for now. I'll click in the spacing cell and type 1.25 millimeters. For the number of pattern instances, I'll type in 4. You've probably already noticed that the preview only shows 4 copied instances. The number typed into the Property Manager represents the total number of instances, including the original seed geometry. To create a pattern in 2 directions, I'll activate the Pattern Direction To field. I'll select this edge as the direction vector. You were probably expecting the preview to update, but if you look in the Property Manager, the number of instances for direction 2 is set to 1. I'll use the arrows to increase this to 5, and you can see the preview updates right away as I do this. But the spacing obviously needs to be adjusted. I'll type in a value of 1.25 millimeters in the spacing window. You can see that the instances that were patterned in direction 1 were also patterned in this direction. Notice if I check the box to Pattern Seed Only, Direction 2 is only patterning the original seed geometry and does not include the other instances from Direction 1. I'll disable this option for now and show you another example of this in a moment. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि एक बॉक्स को लेके वो पहले एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पैटर्निंग किया और फिर जाके वर्टिकल डायरेक्शन में भी पैटर्निंग किया। तो पैटर्निंग 2 तरफ से अलग-अलग तरीका से हुआ और फिर जाके अपने हिसाब से कोई भी जगह को स्किप भी कर सकता है। ओके, मैं इसका प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, आप लोगों को अच्छी समझ में आएगा। For display pattern information tooltips can be checked or cleared here to enable or disable the tooltip feature. At this point, I'll move on to show you another example. A moment ago, you saw that the second direction defaults to patterning all geometry created by the first direction, unless Pattern Seed Only is used to pattern only the seed geometry. This option is commonly used to prevent overlapping results when the 2 directions use the same vector. I'll launch the Linear Pattern tool. First, I'll select the seed geometry in order to see a preview in the graphics area. I want to pattern the 3-hole feature. So I'll click the Features to Pattern window, expand the Feature Manager tree, and click on the Cut Extrude feature that created the 3 holes. With the seed geometry selected, I'll set the parameters for direction 1. I'll select this edge for the pattern direction. And using the callout, I'll type a value of 38.5 millimeters in the spacing window. And I'll type in a value of 2 in the instances window. For direction 2, I'll select the same edge and make sure it's going in the opposite direction. To better show you the effects of the Pattern Seed Only option more clearly, I'll type a value of 25 millimeters in the spacing window and a value of 2 in the instances window. You can see that all of the geometry created by the first direction is patterned here in direction 2. These 2 pattern instances would overlap. To prevent this overlap, I'll select the Pattern Seed Only checkbox. Right away, you can see the preview updates to show only the seed geometry being patterned in direction 2. फाइन, चलिए इसको करके हम लोग अब देखते हैं। ओके, इसको हटाते हैं अब हम लोग। अच्छा, वहाँ पे देखो जो भी हम लोग वहाँ पे चेंजेस किए ना, सारा चीज देखो यहाँ पे चेंजेस आ गया।
ये सारा चीज चेंजेस आ गया, जबकि ये सब एक ही ड्राइंग का पार्ट है ना, इसलिए सारा चेंजेस यहाँ पे आ गया। तो आप जो भी 3D में चेंज करते हो वो ऑटोमेटिकली 2D में चेंज आ जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का ड्राइंग। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैं बस एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंड देन आफ्टर और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कॉर्नर रेक्टेंगल। ओके, ऐसा कुछ, ठीक है। ट्वेंटी mm, इसको भी ये पॉइंट से ये पॉइंट। तो कुछ ऐसा चीज होता है ना कि जो कि कहीं बताया भी नहीं रहता है, या फिर आप लोग मिस आउट कर दिए होंगे, हम बताए होंगे। तो जब मैं डायमेंशन ये सब मैं पुट करता हूँ ना, तो उस समय मैं वो सब चीज का इस्तेमाल करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मुझको ये चीज बनाना था, मैं इस बार देखो ऑफसेट नहीं लिया, मैं इस तरह से बनाया है ना। तो अप्रोच अलग अलग हो सकता है, जो भी सुविधा रहे। ठीक है ना। अच्छा, ये अब रेक्टेंगल है इसलिए ये ज़्यादा हो जा रहा है। चलो इसको और ज़्यादा कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। 1000 काफ़ी ज़्यादा हो गया, 800 कर देते हैं, 1100। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये बॉक्स है, ठीक है, इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड मिड प्लेन से ही करते हैं, मिड प्लेन से करेंगे, एक डायरेक्शन देंगे, वो खुद को खुद इसमें जो होना है हो जाएगा। मिड प्लेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है हमारा काम कि हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। तो ये जगह को हम लोग ने लिया और यहाँ पे एक स्केच करना स्टार्ट किया। ओके, कंट्रोल 8 करके इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, जिससे स्केच हमारा सही तरीका से बने, नहीं तो टेढ़ा ही बनेगा। ठीक है, फीचर एक्सट्रूड, इसको एक्सट्रूड करते हैं 10 mm। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट होगा तो बोल देना। अभी एक चीज ध्यान दो, ये यहाँ पे ये सार पेज है, ठीक है। अभी मैं फिलेट कर रहा हूँ, फिलेट इसलिए कर रहा हूँ ना, आप लोगों को एक चीज दिखाना है। फिलेट में मैंने क्लिक किया, फिलेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसको मैं पैटर्न करने वाला हूँ। लीनियर पैटर्न में आपको क्लिक करो, यहाँ पे लीनियर पैटर्न में डायरेक्ट फीचर्स, सबसे पहले तो ये फीचर्स लिया है फिलेट, लेकिन सिर्फ फिलेट पैटर्न होगा तो देखोगे कि आपका आया ही नहीं। आप लोगों को फिलेट के साथ साथ बॉक्स एक्सट्रूड भी लेना है, अब जाके ये टोटल बॉडी आया, इसलिए मैं फिलेट दिया कि आप यहाँ से मल्टीपल फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्शन सिलेक्ट कर लो, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में करना है। देखो यहाँ पे 10 mm का डिस्टेंस है, 10 mm का डिस्टेंस में 4 है, मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है। कितना, सॉरी 200 करके देखता हूँ, 200 करके देखता हूँ, नहीं एडजस्ट हुआ, 150 करके देखते हैं, एडजस्ट हो गया, चलो ठीक है। तो ये ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर चल गया, ठीक है। डायमेंशन नहीं है, फ्री हैंड है, इसलिए ऐसे हमको हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ रहा है। आप लोग को जब भी ड्राइंग करना होगा, आप लोग के पास डायरेक्शन होगा ही, सॉरी डायमेंशन होगा ही। अभी यहाँ पे भी हमको करना है, तो हम लोग यहाँ से देखो डायरेक्शन 2 ऑन कर देंगे। डायरेक्शन 2 जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन पूछेगा, मैं बोला ये वाला डायरेक्शन, ठीक है ना। अभी ये डायरेक्शन जो है, इस पे क्या हुआ, नहीं आया ना कुछ भी। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंसेस 1 है,
इसको 1 से 2 को तो करो, 3 करो, 4 करो, ठीक है। और इसको अगेन मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान दो, ये सबको पैटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं मेरा जो ये बेसिक है इसको ही पैटर्न करना है, तो यहाँ पे पैटर्न सीट ओनली में क्लिक करना, तो देखो सिर्फ यही पैटर्न होगा। अब पैटर्न सीट ओनली में क्लिक नहीं करोगे तो सारा का सारा चीज पैटर्न होगा, मतलब इसका पैटर्न का ये पैटर्न कर रहा है अगर बाय डिफॉल्ट। और इसको चेक करोगे तो मेन जो सीड है, मतलब जो बीज है यानी कि जो जड़ है, उसका ही पैटर्न करेगा, मतलब इसी से तो सब हो रहा है ना, ये मदर बॉडी है ये। अब इसमें एक चीज देखो, मान लो अभी बीज का हमको कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन में जाना, यहाँ पे लिखा रहता है इंस्टेंसेस टू स्किप, इसमें क्लिक करना है इंस्टेंसेस टू स्किप में, और फिर जाके यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये पॉइंट नहीं चाहिए, ये पॉइंट नहीं चाहिए हमको बीच का, ये पॉइंट नहीं चाहिए ऑल्टरनेटिव में, ठीक है। मेरा इस तरह का कुछ डिजाइन है तो हमको नहीं चाहिए, तो कौन इतना मेहनत करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो इस तरह से कर सकते हो। अगर मैं इसको 8 से 9 कर दूं तो मेरा ये थोड़ा इवेंट पैटर्न हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया क्लियर, ओके। तो ये चीज है आपका पैटर्न का काम, ठीक है। अगर मान लो होल्स है तो होल को आप पैटर्न कर सकते हो, मतलब फीचर्स यहाँ से सिलेक्ट करना दिखा दिए ना, कैसे फीचर सिलेक्ट करना है, तो वैसे ही फीचर सिलेक्ट करके करना है, ठीक है। The linear pattern feature includes an option called Instances to Vary. When this option is enabled, it allows you to vary the spacing for each instance, as well as vary dimensions of the pattern geometry itself. To demonstrate, I'll launch the Linear Pattern tool. I'll skip down and select the geometry to pattern. And edit the Direction 1 parameters. I'll select this edge as the pattern direction. Type in a spacing value of 40 millimeters and set the instances to 4. With a basic pattern created, I'll scroll down to the bottom of the Property Manager and click the Instances to Vary checkbox. This field at the top allows you to vary the pattern spacing by typing in a value that will increment for each instance. I'll enter a value of 10 millimeters, meaning that the spacing between instances will increase by 10 millimeters for each instance in the pattern. You can also choose feature dimensions to vary in Direction 1. In the graphics area, you can see the dimension values that can vary based on the C geometry that has been selected. To add feature dimensions to this window, I'll click on the dimension in the graphics area. I'll click this radius dimension, and you can see that it was added to the window. To edit the increment value, I'll double-click the cell and type in a value of 2 millimeters. I'll add one more dimension. I'll select the width dimension. I'll type in a value of 5 millimeters, but this time I'll use the callout. Notice that the Direction 2 Vary Instances options are disabled. If you have a pattern that goes in two directions, you would be able to edit these as well. To apply the changes I just made, I'll click OK, and you can see that spacing between instances increases, along with the radius and width. If you want to modify a specific pattern instance to use a different value than what is being incremented, SolidWorks allows you to do this as well. I'll click on the pattern feature and select Edit Feature. Just as you saw in an earlier example where the markers were used to skip instances, notice if I click on a marker for one of the varying instances, there's an option to skip, as well as to modify this instance. If I click Modify Instance, a callout appears that's attached to the instance. I can edit the values to override the current pattern settings. For this example, I'll change the spacing to 100 millimeters, the width to 40 millimeters, and I'll click OK. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या एक चीज दिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाया गया है कि अगर आप लोग को In the graphics area, you can अगर आप लोग को कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब चीज चेंज करना है, तो इंस्टेंसेस टू वैरी में जाके आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का ही आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये वाला आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छा चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर मेरे को ये एडिट करना है तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करना, यहाँ पे एडिट फीचर में क्लिक करना, एडिट करने के लिए फिर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे में यहाँ पे रहता है आपका इंस्टेंसेस टू वैरी,
जैसे ही आप इसको चेक करते हो ना, फिर देखो इंस्टेंसेस आ जाता है वैरी करने के लिए, ठीक है। अभी इंस्टेंसेस वैरी करने के लिए आ गया, मतलब मुझको ये जगह का इंस्टेंसेस को वैरी करना है, तो मैं इसको अगर चेंज कर रहा हूँ, ये सारे इंस्टेंसेस ले लिया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर सिलेक्शंस करके मैं बस ये कुछ इंस्टेंसेस को मैं करता हूँ, सॉरी मैं इंस्टेंसेस टू स्किप, मॉडिफाई इंस्टेंसेस। इसमें अभी जैसे ही मैं क्लिक किया ना, ये मॉडिफाई में आ गया, ठीक है। इसमें मैं क्लिक किया, अच्छा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं चेंज करके मान लो मैं कर देता हूँ कि 200, ओके। देखो ये कहाँ चल गया, ये इस तरफ में भाग गया, ऊपर की तरफ में भाग गया, क्यों, क्योंकि वो उसका पर्टिकुलर उस पॉइंट का ही मैंने इंस्टेंस सेलेक्ट किया। स्किप इंस्टेंसेस, अच्छा इसको भी स्किप कर देते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई करने से डायरेक्शन 2 का स्पेसिंग पूछा है ना, ये डायरेक्शन 2 कौन सा है, ये है। तो डायरेक्शन 2 का स्पेसिंग जो है इसको 400 से कितना कर देते हैं, 200 कर देते हैं। देखो ये यहाँ से कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, ठीक है। ये दो यहाँ पे चल गया, ओके कर दो। या फिर इसको ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा वैल्यू इसको देते हैं कि जिससे ये सबसे हटके लगे, ठीक है। तो इसको देते हैं 250। तो देखो अब सबसे हटके है ना, ये बीच में आ गया है। तो इस तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हो, ओके फाइन। अच्छा ये इस पॉइंट के लिए बोल रहा है मॉडिफाई इंस्टेंसेस डिलीट, ठीक है। वो क्यों एरर आ रहा था पता है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया था, मैंने 200 दिया था, तो 200 होने के बाद क्या हुआ, ये इसके ऊपर में आ गया। अब मैंने इसको तो डिलीट नहीं किया, तो इसके लिए बार बार एरर आ रहा था, जिसके कारण मैं इसका इंस्टेंसेस को डिलीट कर दिया, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सभी फीचर्स है आपका इंस्टेंसेस का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर्कुलर पैटर्न। सेम लीनियर पैटर्न का तरह सर्कुलर पैटर्न होता है, जैसे कि आप लोग देखे थे कैसे रिवॉल्व रोटेट कैसे होता है, वैसे ही ये भी वैसे ही है। मतलब एक सिंपल एक्सट्रूशन करते हो, फिर एक रोटेशन एक्सट्रूशन करते हो, वैसे ही एक सिंपल लीनियर पैटर्न करते हो और एक रोटेशनल पैटर्न करते हो, ठीक है। सॉरी वाला वॉइस बंद था। तो यहाँ पे एक होल है, उसको लेकर अभी चारों तरफ से इसको अभी क्रिएट किया जाएगा सर्कुलर होल। Pattern feature in the Insert Pattern Mirror drop-down menu, as well as in the Linear Pattern flyout on the Command Manager. I'll click it, and the Property Manager appears. The first group box lets you set the pattern parameters, but before I talk about these options, I'd like to first select the geometry that I'm going to pattern, because by doing so, I'll be able to see a preview of the pattern in the graphics area. Just like many pattern tools, you can choose whether to pattern features, faces, or bodies. As I mentioned earlier, this cutout is made up of two features, so I'll click in the Features to Pattern window. To select the features I wish to pattern, I can select them from the graphics area, or I can expand the Feature Manager tree and select them from here. Now that I have the C geometry selected, I'll go back to the Direction 1 group box. In the first field,
You can specify the entity to use for the pattern axis. The pattern axis can be a linear edge or sketch line, circular edge, cylindrical face or surface, angular dimensions, or any other entity that can be used to define a center of rotation. I'll select this cylindrical face, and a preview appears. This next field is where you can set the angle for the pattern instances. Notice that right now the equal spacing option is selected, and since the angle, more example, here on this part. बाकी सबके तरह ही सेम है, इसमें कुछ नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ. ओके, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्केच एक बनाता हूँ. ओके, ये आप सर्कुलर बॉडी में भी कर सकते हो और ऐसा रेक्टेंगल बॉडी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर्कुलर बॉडी हो या रेक्टेंगुलर बॉडी हो, किसी में भी आप लोग कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे सर्कल बनाया. ओके, सर्कुलर पैटर्न के लिए एक तो हमें एक एक्सिस तो चाहिए, तो वो एक्सिस तो मैं इसका ही लूंगा ना, कोई तो एक सर्कल का एक्सिस लूंगा ना. ओके, अभी देखो इसको सर्कल को मैं बना के यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में मैं फॉर कंस्ट्रक्शन क्लिक कर दिया. ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना कि इसको भी वो बार बार लेगा. और यहाँ पे मैंने एक छोटा सर्कल बनाया. ठीक है, फीचर एक्सट्रूड कट. ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थ्रू ऑल भी कर सकता हूँ. जैसे ही मैं थ्रू ऑल करूंगा ये इसको भी कट कर देगा. चलो ठीक है, कट हो गया. अभी मैं इसको सर्कुलर पैटर्न कहूँगा. यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सर्कुलर पैटर्न है. सर्कुलर पैटर्न में क्लिक करते ही यहाँ पे पूछेगा किसका सर्कुलर पैटर्न करना है, तो स्केच मेरे पास ऑन होना चाहिए. ओके, जस्ट वेट मिनट, ये शायद मुझको और एक स्केच में क्रिएट करना सही रहता. ओके, स्केच ऑन है बट ये दिखा रहा है. हाँ, अच्छा, सर्कुलर पैटर्न हम करते हैं. अच्छा, ऐसे ये नहीं लेगा, ऐसे ये नहीं ले रहा है. ओके फाइन, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. जस्ट होल्ड ऑन. इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से एक बार हटा के देखता हूँ कि अगर होता है कि नहीं. ओके, एंड देन आफ्टर फीचर्स, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आया पता है, क्योंकि मैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन से हटा दिया. तो कंस्ट्रक्शन लाइन से हटाया, कंस्ट्रक्शन लाइन से मैंने इसको हटाया, तो ये भी एक बॉडी हो गया, ये भी एक बॉडी हो गया. तो प्रॉब्लम तो होगा ही. तो इसको प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा, राइट क्लिक करो इसमें, इसको इसके साथ. ठीक है, यहाँ पे देखो रेड क्रॉस आ गया कि नहीं हो सकता. अभी जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीखो, कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है. यहाँ तो दो सॉलिड सर्कल है ना, तो मैंने तो कंटूर सिलेक्ट ही नहीं किया, तो मुझको कंटूर सिलेक्ट करना चाहिए था कि मुझको सिर्फ इस पे काम करना है और किसी पे काम नहीं करना है. ठीक है ना, तब जाके वो इसको ही लेगा. ओके, एंड देन जब मैं रिवॉल्व करूंगा इसको सर्कुलर पैटर्न, तब मैं देखता हूँ कि ये आता है कि नहीं. बिकॉज एक ही स्केच में दोनों है, तो हो सकता है कि ये ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है. तो नहीं ले रहा है. ओके, क्योंकि एक ही स्केच में दोनों है. कोई नहीं, अगर हम लोग व्यू में जाके एक एक्सिस देखते हैं, एक्सिस आ रहा है कि नहीं. अगर एक्सिस आ गया तब तो ठीक है. ओके, इसका एक्सिस भी नहीं आ रहा है. तो हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग को एक बॉडी, एक सर्कुलर बॉडी में ही दिखा देते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सर्कुलर बॉडी में ही होगा, रेक्टेंगल बॉडी में भी हो सकता है. आप लोग इसको अलग स्केच में ट्राई करना. मतलब ये जो बड़ा सर्कल है ना, इसको एक स्केच में बनाना और ये छोटा सर्कल को दूसरे स्केच में बनाना, तो हो जाएगा. ओके, ठीक है.
ठीक है, मैं यहाँ पे कट कर दिया। अब इसको मैं सर्कुलर पैटर्न कैसे करूंगा, लीनियर सर्कुलर पैटर्न। किसके अराउंड में सर्कुलर पैटर्न करना है, एक्चुअली फिजिकल इसको कुछ चाहिए होता है जिसको ये टच करे। ठीक है, हो गया। मैं इसको नंबर काउंट बढ़ा सकता हूँ, कुछ इंस्टेंसेस को स्किप कर सकता हूँ, जैसे सेम वहां पे था वैसे ही इसको मैं स्किप करूंगा और इसको स्किप करूंगा। ठीक है, ओके, हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से सर्कुलर पैटर्न और लीनियर पैटर्न हम लोग करते हैं। फाइन, तो ये सब मॉडल जो है I would like to create a circular pattern of these two circular cutouts about ये सब मॉडल आपको यहाँ से मिल जाएगा और इसको आप लोग देख के प्रैक्टिस करना तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगा। ठीक है, देखो मैं बोल रहा था ना कि फ्लैट फेस में भी होता है, तो फ्लैट फेस में एक एक्सिस बनाया गया, अभी फ्लैट फेस में एक्सिस बना के उसका सर्कुलर पैटर्न किया जा रहा है। ठीक है, देखो फ्लैट फेस में एक्सिस बना के, ये फ्लैट फेस है, एक्सिस बना के तब इसका सर्कुलर पैटर्न हो रहा है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग में। तो इधर आपको सर्कुलर एज चाहिए या फिर एक एक्सिस चाहिए, तो फ्लैट हो या सर्कुलर हो आप किसी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर पैटर्न, मिरर पैटर्न बहुत इजी है। जो चीज मैंने एक तरफ बनाया है उसको मुझे कॉपी करना है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे, अच्छा मैं ये सर्कल को ही लेके करता हूँ, लीनियर पैटर्न में करता हूँ। लीनियर पैटर्न किसका, इस सर्कल का। ठीक है, फीचर्स, वर्ड्स एक्सट्रूड नहीं, क्लियर सेक्शन, इसका ठीक है, इसका अगर लीनियर पैटर्न अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, इसका अगर लीनियर पैटर्न करते हैं और डायरेक्शन लेते हैं, कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये लीनियर पैटर्न देखो कि इस साइड में, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ और इसका 3 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि यहाँ पे भी बना हुआ है इसलिए ये भी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं बना होता तो मैं मिरर करके दिखा देता कि इस साइड में भी मिरर कर सकते हैं। अच्छा, अब देख लो कि प्लेन कहाँ पे है। अच्छा, ये मैं मिड में बनाया था, बीच में बनाया था, तो ये फ्रंट प्लेन बीच में है। चलो ठीक है, तो मिरर मैंने किया, मिरर में किसको सिलेक्ट किया, मिरर किसके अबाउट में करना है, इसके अबाउट में करना है, फ्रंट प्लेन के अबाउट में। किसको मिरर करना है, ये लीनियर पैटर्न जो है इसको मिरर करना है। तो देखो यहाँ पे भी आ गया, तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न जो है मिरर है, ये मिरर किया हुआ है। ठीक है, मैंने मिरर किया, तो यही होता है पैटर्न, मिरर पैटर्न। ठीक है, आप लोग देखो इसको ध्यान से, कोई डाउट हो plane तो or पूछना। planar face. This comes in handy when you have symmetric designs, as it allows you to create and define half the geometry and simply mirror the other half. With the mirror feature, you can replicate faces, features, or entire bodies. In this lesson, I'll demonstrate how to use the mirror feature to replicate an existing cutout feature, and we'll finish up by mirroring the entire body. To get started, I'll launch the mirror feature from the linear pattern flyout, and the property manager appears. In the first selection window, you can select any plane or planar face of the model to mirror about. In this case, I would like to mirror this cutout onto the other side of the part. I'll expand the flyout feature manager tree, and watch as I hover the cursor over the default reference planes. Notice that the right plane passes directly through the center of the part. This is probably not by coincidence. If the designer knew ahead of time that this part would have some symmetry, such as with this cutout, the part could have been created intentionally to have one of the reference planes in a convenient location for mirroring, like you see here. In case you are working with a part that doesn't have one of the default reference planes or planar faces of the model in an appropriate location for mirroring, you can always create your own reference planes, but I won't go into that here. For now, I'll select the default right plane to mirror about. Next, you can select the geometry you wish to mirror. There are 3 different options for what you can mirror: features, faces, and bodies.
To mirror this cutout, I'll click in the Features to Mirror window to activate it, and I can either select a feature from the graphics area by clicking one of the faces of the cutout, or by expanding the Feature Manager tree. और जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ ये जो मतलब पैटर्न है उसी को आप लोग फीचर करोगे, आप लोग आराम से जो कोई भी पार्ट हो, मतलब चाहे मेरा यही पार्ट क्यों ना यहाँ पे दोबारा बनाना पड़े, ये पार्ट को मिरर करके यहाँ बनाना पड़ेगा, कोई भी पार्ट को भी आप लोग मिरर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पैटर्न को ही मिरर करना है, ठीक है। मिरर मतलब किसी को भी आप कॉपी कर सकते हो। You can see that it has a through all end condition. The mirror feature preserved this end condition as well, which is why the cutout appears through both sections. In situations like this might not be the result you want. Let me show you an option that is available to address this. I'll edit the mirror feature, and the Property Manager appears. Notice in the Options section, there's an option called Geometry Pattern. This option tells SOLIDWORKS to only replicate the geometry such as its faces and edges as shown, rather than solving the whole feature including its end conditions. I'll go ahead and click the Geometry Pattern checkbox. Click OK, and only the geometry shown in the original cutout was mirrored. As I mentioned earlier, the mirror feature can be used to mirror entire bodies. Let's go through another quick example. I'll launch the mirror feature from the pattern flyout. In the Mirror Face Plane selection window, this time, I'll select this face of the part to mirror about. Since I would like to mirror all of the geometry in this part, I'll expand the bodies to mirror group box. And with the selection window active, I can click anywhere on the part body. Right away, a preview appears. In the Options group box, you can see that some slightly different options are available here compared to what you saw a moment ago when mirroring features. When Bodies to Mirror is active, the Merged Solids and Knit Surfaces options appear while the Geometry Pattern option is removed. To finish up, I'll click OK. Before wrapping up, I would like to quickly demonstrate one-time saving effect of using the mirror feature. What if this cutout needed to change? Well, since I used the mirror tool to mirror the original feature, and then I mirrored that entire body, all I need to do to make the design change is to edit the original cut feature. I'll make a quick dimension change. And you can see that all of the downstream mirror geometry updates as well. तो होता क्या है ना कि अगर मैं मिरर करने के बाद अगर मैं कोई भी पार्ट का डायमेंशन या फिर कुछ भी चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारा चीज़ ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखो, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, इस पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। इसके डिज़ाइन में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ छोटा सा, ठीक है। ठीक है ना, अभी ये परफेक्ट हो गया। ओके, रिबिल्ड, रिबिल्ड। अगर नहीं आया तो यहाँ पे ये जो रेड और ग्रीन सिग्नल है ना, इसको रिबिल्ड करना। देखो सारा वैसे का वैसा हो गया ना, एक का चेंज किए सारा हो गया। तो यही सब फायदा होता है मिरर करने का या फिर पैटर्न करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, अदर टाइप ऑफ पैटर्न्स। इसको आप लोग देख लो, घर में खुद से प्रैक्टिस करना। अदर टाइप ऑफ पैटर्न्स में बहुत सारा पैटर्न आता है। हाँ, ये आप लोग का उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट देख लोगे तो आप लोग के नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब नॉलेज के लिए अच्छा होगा। SOLIDWORKS provides many tools for replicating geometry, such as the commonly used linear pattern, circular pattern, and mirror features, but there are quite a few other tools that can be powerful to replicate geometry, such as the sketch pattern.
table-driven pattern, curve-driven pattern, and fill pattern. Let's take a look at each of these in the upcoming lessons. तो इतना तरह का In this पैटर्न lesson, है आप लोग let's का, take a look at sketch-driven patterns and table-driven patterns. ठीक है, इतने तरह का पैटर्न है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे जो शो कर रहा है स्केच ड्रिवन पैटर्न, मतलब जो पैटर्न होगा अब वो लीनियर या फिर सर्कुलर नहीं होगा, अब वो स्केच के अकॉर्डिंग में पैटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्केच बनाया गया है और यहाँ पे पॉइंट जो है पॉइंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट रखा जा रहा है, अलग अलग जगह में अलग अलग पॉइंट रखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा स्केच ड्रिवन पैटर्न। पॉइंट को डिस्टेंस दे दिया जा रहा है, नहीं तो बाद में लगेगा कि सर इसको तो लीनियर पैटर्न से भी कर सकते थे। तो लीनियर से नहीं, लीनियर से ऐसे आगे पीछे करने में बहुत झमेला होता है ना, पहले पैटर्न करते फिर जाके उसका इंस्टेंसेस को सिलेक्ट करते मॉडिफाई करते, झमेला है। या फिर मान लो ये कर्व होता तो क्या करते, तो आप कर्व स्केच में भी ये कर सकते हो, ठीक है। अभी गए स्केच ड्रिवन पैटर्न में और फिर जाके यहाँ पे फीचर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे बॉडी फीचर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर बॉडी अगर बना हुआ है तो बॉडी को भी सिलेक्ट कर सकते हो पैटर्न करने के लिए, ठीक है। बस स्केच को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे तो हो गया। अच्छा, जैसे ही आप लोग ये सब स्केच ड्रिवन करते हो ना तो एक टेबल क्रिएट हो जाता है, वो टेबल को भी आप देख सकते हो। Either the pattern flyout on the command manager or from the insert pattern mirror drop-down menu. In the window that appears, there is a browse button which allows you to leverage XY point data from an external file. But for this example, I will enter the XY data manually. To get started, I'll activate the coordinate system selection window and select the coordinate system I added a moment ago from the Feature Manager tree. Next, I'll activate the Features to Copy selection window, and this time I'll select the D35 cut feature from the Feature Manager tree. As I did so, you might have noticed that row 0 in the table updated and the values of the selected feature with respect to the coordinate system. To create additional instances, all I have to do is type in the XY coordinates for each instance. I'll take a moment to add a few here. And as I add them to the table, you can see the preview updates in real time. ये टेबल ड्रिवन पैटर्न है, आप लोग को टेबल में पुट करना पड़ेगा वैल्यू, तो अपने आप ये टेबल के हिसाब से एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये यहाँ पे बनते With a रहेगा। few instances added, I'll click OK, and the pattern is complete. To make any changes to the pattern, I can click on it in the Feature Manager tree. Select Edit Feature, and the window you saw a moment ago reappears where you can make changes or add additional instances. ये आपके स्केच और टेबल Curve-driven patterns are another powerful way to replicate geometry. They allow बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग कर्व में अगर आपको ये कैसे कर्व है इसमें अगर आपको पैटर्न करना है तो कैसे करोगे, तो जनरली हम लोग लीनियर कर सकते हैं या फिर सर्कुलर कर सकते हैं, तो कर्व ड्रिवन पैटर्न भी होता है यहाँ पे। ओके, आप लोग देखो। Since I would like to pattern it around the outer perimeter, I will first create a sketch that follows the contour and use that sketch for the curve-driven pattern. I'll start the sketch on the top face of the model. Since this edge is the exact contour that I wish to use for patterning, I will use Convert Entities to create the sketch that follows the edge. And in fact, we'll have an on-edge relation added, so if the part geometry were to ever change, the sketch would update along with it. Before launching Convert Entities, to make the selections easier, I'll right-click on one of the edges and choose Select Tangency. With the items pre-selected, I'll go ahead and click Convert Entities. At this point, I'll go ahead and exit the sketch, which is now listed in the Feature Manager tree and available to use in the curve-driven pattern. The curve-driven pattern can be found on the pattern flyout on the Command Manager, or from the Insert Pattern Mirror drop-down menu. As I mentioned a moment ago, the pattern direction for a curve-driven pattern can be a curve, an edge, an entire sketch, or a single selected sketch entity.
Notice if I try to select the sketch I created a moment ago from the graphics area, only a single sketch segment is selected. I'll clear the selection, and instead, I'll expand the Feature Manager tree and select the entire sketch from the tree. I'll come back to these options in the Property Manager in a moment, but first I'll scroll down and choose the geometry that I would like to pattern, which can either be features, faces, or bodies. In this case, I will be patterning a feature, so I'll go ahead and select the hex cut from the graphics area. When I do, the preview appears, and I can scroll back up to the top to adjust some of the pattern options and parameters. If the pattern is going in the wrong direction, you can click the flip direction button or use the arrow in the graphics area. SOLIDWORKS allows you to enter the pattern spacing manually, or you can use the equal spacing option to have the instances evenly distributed along the pattern direction. तो कर्व वाला कैसे क्रिएट करना है, जैसे कोई भी आपने इस तरह का बॉडी क्रिएट किया तो सबसे पहले ना उसको कन्वर्ट एंटिटीज करके उसका आउटर एज जो है ना, आउटर एज को सिलेक्ट कर लेना। तो ऐसा एक कर्व स्केच क्रिएट हो जाएगा। अब फिर जाके कर्व ड्रिवन पैटर्न में जाके उस स्केच को सिलेक्ट करना और जिसको पैटर्न करना है वो पैटर्न फीचर्स को सिलेक्ट करना, ठीक है। और उस हिसाब से फिर जाके उसमें ऑफसेट कर्व करके, नहीं तो वो कर्व को पकड़ा रहेगा तो बाहर हो सकता है ना, क्योंकि अगर आप एज में सिलेक्ट किए हो तो ऑफसेट कर्व करके थोड़ा सा साइड कर देना है इसको। अब फिर जाके इसको आप पैटर्न कर लो, सिंपल है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज which one? This one is a fill। हाँ, fill पैटर्न। इसमें fill पैटर्न में क्या होता है, पूरा fill करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले एक पैटर्न क्रिएट किए, कोई भी बॉडी लिए, फीचर्स, और सॉरी पैटर्न नहीं क्रिएट किया अभी कोई भी फीचर्स लिए। फीचर्स लेने के बाद इसके बाद कोई भी एक बॉडी है तो उसको सीड कट किए, ओके, या फिर सिलेक्टेड फीचर्स किए, मतलब या फिर कट भी कर सकते हो या फिर उस पर कुछ भी मतलब फीचर्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आपके पास बहुत सारा सीड कट का वो स्ट्रक्चर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो ना शीट मेटल में कैसा होता है, शीट मेटल में बहुत सारा छोटे छोटे होल्स रहते हैं, वेंट होल्स रहते हैं। तो ये सब फिल पैटर्न का है। इस पे आप लोग मतलब सिलेक्ट कर सकते हो कि हमको ऐसा कट चाहिए, ऐसा कट चाहिए, इस तरह का कट चाहिए। तो आप सिलेक्ट कर लिए शीट मेटल में कि हमको इस तरह का राउंड कट चाहिए, ठीक है। और फिर जाके आप लोग सिलेक्ट कर लिए कि हमको इस डायमंड टाइप का राउंड कट चाहिए, तो उससे आप लोग टेबल ड्रिवन कर सकते हो, ठीक है। ये शीट मेटल में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। ये सब आप देख लेना। मैं लास्ट एक चीज बस दिखा देता हूँ, जैसे कि ये छोटे सा है तो मैं इसको ना सबको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, ये एक बार टेक्स्ट बुक सब हाइड कर दिया। देखो अब कुछ नहीं है, इसको आप हाइड कर सकते हो। कैसे हाइड कर सकते हो, इसको पकड़ के अगर ड्रैग करोगे ऊपर की तरफ ना तो इस सारा का सारा फीचर सप्रेस हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सप्रेस, ठीक है। अब अभी इसको भी सप्रेस कर दूँ क्या? हाँ चलो, इसको भी मैं सबको सप्रेस कर देता हूँ। यहाँ तक मैं सप्रेस कर दिया सारा चीज। देखो अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या किया, यहाँ पे लीनियर पैटर्न में गया और गया मैं फिल पैटर्न में। जब मैं फिल पैटर्न में जाता हूँ तो ये फिल बाउंड्री पूछ रहा है। कौन सा बाउंड्री? ये बाउंड्री मुझको करना है फिल, ओके। एंड देन आपको किस तरह का फिल करना है, हमको इस तरह का फिल करना है, राउंड, ओके। और सीड किस तरह का होगा? सीड रहेगा ये डायमंड के कट का, ठीक है। थोड़ा इसका साइज थोड़ा जो है वो बड़ा कर देंगे जिससे कि समझ में आए कि डायमंड कट ही हो रहा है, ठीक है ना। अब समझ में आएगा ना डायमंड कट हो रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया है तो इसको हम लोग चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ना ही कोई डिजाइन किया, ना ही कुछ किया। मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि दिखे। और राउंड में है और क्या 10 mm। और क्या इसमें कर सकते हैं, और कुछ ऑप्शन है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ऑप्शन
लगभग सारा ऑप्शन ही हम लोग देख लिए, ठीक है। फाइन, तो ओके करो। देखो कैसे कट हुआ है, राउंड कट हुआ है, कैसे किस तरह का हुआ है, डायमंड टाइप हुआ है। अब बोलोगे सर ये फिल नहीं हुआ, फिल मैं नहीं किया क्योंकि मैं इसका डायमेंशन जो है, साइज जो है मैं बहुत बड़ा कर दिया था दोनों के बीच का गैप। अगर आपको फिल करना है तो आप फिल कर लो, ये साइज को कम कर दो आप, सॉरी इसको बढ़ा दो आप, जितना बढ़ाओगे उतना आएगा ये, ठीक है। साइज पे भी तो डिपेंड करता है। ओके, अब देखो और बढ़ गया, तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, कितना साइज करना है, ठीक है। तो आज आज के लिए इतना ही, हम लोग पैटर्न ये सब सीख लिए, और नेक्स्ट क्लास से आप लोग का पैटर्न तो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग का जो रहेगा वो स्वीप से स्टार्ट करेंगे, ये एक नया टॉपिक है स्वीप, अच्छा टॉपिक है। तो कल से हम लोग स्वीप में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है अदर पैटर्न्स तक, तो मुझको व्हाट्सएप कर देना आप लोग, ओके।